السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ شرفا، حرمت روح پیمبر، یک نظر کن سوء ما، یک نظر کن سوء ما، یک نظر کن سوء ما۔ اے شرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا۔ اشرف نہنگ دریا دریا بسی نہ دارد، دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارد۔ شیخ اعظم بانی جامع اشرف یوں گویا ہیں: نور یزداں مدد سید و سلطان مدد، نور یزداں مدد سید و سلطان مدد، در گلو طوق غلامی شہ اشرف دارم، یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد، یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد۔ محترم سامعین و ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ابھی ہم تارک السلطنت غوث العالم محبوب یزدانی سید شاہ سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار کی چھوچھا کی بارگاہ مقدسہ میں حاضری کا شرف حاصل کیے ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ تاج العربیہ خلیفہ حضور اشرف ملت حضرت علامہ مولانا مقبول احمد سالک مصباحی صاحب ہیں، اور ان سے ہم سرکار مخدوم پاک کے بارے میں بہت کچھ جانیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے پیج الاشرف نیٹ ورک کو زیادہ سے زیادہ فالو کریں، اس کو شیئر کریں، اور یوٹیوب پر ہمارے چینل الاشرف نیٹ ورک کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، سلسلے گفتگو کو آگے پہنچاؤں، میں آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے یہ ایک بات بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی جو رات کے 11 بج رہے ہیں، اور اس وقت سرکار مخدوم پاک کے دربار کے ارد گرد جو تالاب بنا ہوا ہے، جو نیر شریف کے نام سے مشہور ہے، اور یہ نیر شریف یہ شفا خانہ ہے، اور شفا کا ایک سمندر جاری فرمایا ہے سرکار مخدوم پاک نے۔ یوں تو سرکار مخدوم پاک نے اپنے فرزند مانوی سید عبدالرزاق نور العین کے ذریعے ساری دنیا میں اپنے فیوز و برکات کو جاری اور ساری کیا ہے، اپنی بارگاہ میں آنے والے لوگوں کے لیے، عوام و خواص کے لیے اس تالاب کی کھدائی کے ذریعے آپ نے ایک شفا خانہ اپنے قدموں میں بھی جاری فرمایا ہے۔ اور اس وقت سرکار مخدوم پاک کے دربار میں چاروں طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ چند ہی غلامان مخدوم سمنانی موجود ہیں، چونکہ رات کا سمے ہے، 11 بج رہے ہیں۔ اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں سرکار مخدوم پاک کے آستانے کے ارد گرد بہت سارے آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت رکھنے والے، اور آپ کی بارگاہ سے شفا یابی کی تمنا رکھنے والے اور شفا پانے والے ابھی بھی بہت سارے موجود ہیں، اور صبح ہوتے ہوتے ان کی تعداد سینکڑوں میں اور ہزاروں میں پہنچ جائے گی۔ اور یہ بات حقیقت ہے، اور یہ بات سچ ہے کہ سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار وہ دربار ہے کہ جہاں سے عوام کو بھی نوازا جاتا ہے، اور خواص کو بھی نوازا جاتا ہے، اپنوں کو بھی نوازا جاتا ہے، غیروں کو بھی نوازا جاتا ہے۔ یہاں مانگنے والے کی طلب کو دیکھا جاتا ہے، اور وہی چیز ہم سرکار مخدوم پاک کی اولاد میں دیکھیں تو وہی چیز ہمیں سرکار مخدوم پاک کی اولاد میں بھی نظر آتی ہے کہ آپ کی اولاد آنے والے سے اس کی ضرورت کو پوچھتی ہے کہ آپ کی ضرورت کیا ہے، یہ نہیں دیکھتی ہے کہ آپ کا رنگ کیسا ہے، آپ کا علاقہ کون سا ہے، آپ کا مذہب کون سا ہے، آپ کا دھرم کیا ہے۔ اس سے نہ مخدوم پاک کا تعلق رہا ہے، نہ مخدوم پاک کی اولاد کا تعلق رہا ہے۔ اور مخدوم پاک کی اولاد میں اس مشن کو جو مخدوم پاک کا رہا ہے اپنی زندگی میں، اس کو آگے بڑھانے میں اگر اس وقت ہم دیکھیں تو سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عالم ربانی سرکار کلاں، اور بالخصوص اس کڑی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو شیخ اعظم بانی جامع اشرف سید شاہ اظہار اشرفی جیلانی
सज्जादा नशीन खानकाह अशरफिया हसनिया सरकार कला का नाम नुमाया नज़र आता है। और उसके बाद देखें आपके फ़र्जंदान में हुजूर कायद मिल्लत और हुजूर अशरफ मिल्लत उस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और इतनी खुश असलूबी के साथ इस मिशन को लिए हुए हैं कि मखलूक़ खुदा आपसे जुड़ती जा रही है और फ़यूज़ो बरक़ात मखदूम सिमना आम से आम तर होते चले जा रहे हैं। हज़रात, यूँ तो ख़वास और आवाम के दरमियान ऐसा लगता है कि एक हद तक सरकार मखदूम पाक के दरबार को जिन, आसेब, भूत और खुबसा के ख़त्म करने और उनको जलाने का एक आस्ताना समझा जाता है, लेकिन ये बात हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए कि सरकार मखदूम पाक की ज़ात बड़ी बुलंद है। आपने ज़िंदगी के हर मैदान में अपना किरदार अदा फरमाया है और मखलूक़ खुदा की उसी तरह से नियाबत और क़यादत फरमाई है जिस तरह से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अहादीस के ज़रिए पैगाम दिया है कि मेरी उम्मत के उलमा मेरे बाद वो काम करेंगे जो पहली उम्मत के अंबिया कराम करते थे, वो मेरे वारिस होंगे। रूहानी एतबार से भी अगर हम देखते हैं तो सरकार मखदूम पाक की ज़ात वारिसान अंबिया में शुमार होती है और ज़ाहिरी एतबार से भी देखें तो उसके एतबार से भी सरकार मखदूम पाक एकदम बिल्कुल खरे उतरते हैं। अब हम ताजुल अरबिया मोहतरम मौलाना मकबूल अहमद सालिक मिसबाही साहब की तरफ चलते हैं और आपसे हम सवाल करते हैं कि सरकार मखदूम पाक का हल्का सा आप मतलब आपकी सीरत पर रोशनी डालें हल्की सी, उसके बाद हम दूसरे सवाल की तरफ आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान रहम वाला। बेशक जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल किए, अच्छे काम किए, अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत खल्क़ खुदा के दिलों में पैदा फरमा देता है। अल्लाह ताला उनके लिए मोहब्बत का सामान फराहम कर देता है, लोग उनसे मोहब्बत करने लगते हैं। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने सालिहीन के लिए, नेक अमल करने वालों के लिए, सच्चे दिल से ईमान लाने वालों के लिए बशारत दी है, खुशखबरी सुनाई और उन्हें बताया है कि तुम बेखौफी के साथ ईमान ले आओ, नेक अमल करो और किसी दुनियादार से किसी तरह की कोई तवक्को ना रखो, ना किसी से खौफजदा हो, ना डरो किसी से, ना किसी की लालच में आओ। ईमान ले आओ, नेक अमल करो, मैं तुम्हारे लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर दूंगा और लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे। दुनियादारों को, सलातीन को, इक़्तिदार के पुजारियों को देखिए कि वो अपना मकाम बनाने के लिए, लोगों में अपनी इज्जत ऊंची करने के लिए, अपनी बात ऊंची रखने के लिए कैसे कैसे हथकंडे और हरबे अपनाते हैं। कभी लालच, कभी दौलत का लालच देते हैं, कभी अपनी ताकत और अपनी तलवार से डराते हैं, कि अपनी सिपाह और फौज को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप देखें कि बड़े बड़े सलातीन, फराइना, नमारिदा इस खाकदानी गिती में आए और वो अपने कैफरे किरदार को, अंजाम को पहुँच करके चले गए। आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, उनकी कब्र पे कोई चिराग जलाने वाला है। लेकिन अल्लाह वाले, दरवेशान कामिलीन, वारफा, नौजबा, नुकबा, सालिहीन, मुर्शिदीन, मुरब्बियान दीन इस्लाम, मिसले हज़रत सैयदना सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, जो अपने ज़माने के इमामुल मुस्लिमीन, इमामुल कामिलीन, सैयदुल नौजबा, इमामुल उरफा, मीर कबीर, औहदुद्दीन, तारिकुस सल्तनत, हज़रत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात गिरामी आप देखें, आज तकरीबन 700 साल का अरसा गुजर गया है। आप उसके खाकदानी गीती से तशरीफ़ ले गए हुए, मगर आज भी आपके इसी दर पे जहाँ देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा कोई सहूलत नहीं है, ना कोई शाही यहाँ पे सवारी है, ना कोई आला कोई शाही महल है यहाँ पर लोगों को क़याम के लिए, ताम के लिए। मुश्किलात हैं, मसाइब हैं, तकलीफ़ें हैं। लोग हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके आते हैं और यहाँ पे हाज़िरी देते हैं। तो ये इज़्दिहाम, ये हाज़िरी, ये जोशो खरोश, ये जोश जुनू, ये जज्बा, ये लोगों की आमद किस बात का पता देती है? इस बात का पता देती है कि कुरान पाक की आयत करीमा के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह तआला की मोहब्बत लाखों करोड़ों दिलों के अंदर पैदा फरमा दिया। बेशक। और खल्क़ खुदा से टूट करके मोहब्बत करते, और मोहब्बत बेला वजह नहीं होती जी। इंसान अगर 2 मरतबा किसी के दरवाजे जाता है और उसकी हाजत ना पूरी हो, फिर तीसरी मरतबा वो नहीं आता है। 700 साल से ये मर्ग अम्बोह जश्न दारत का जो समा यहाँ पे लोग जो आ रहे हैं और अपने दिलों का नजराना पेश कर रहे हैं, तो बेला वजह तो नहीं है। वो लोग जो सालों से
बलाओं में गिरफ्तार रहते हैं, शदीद तरीन खौफनाक तरीन बलाओं में गिरफ्तार रहते हैं, आसिफ ज़दा होते हैं। डॉक्टर उनको कहते हैं कि आपके हमारे पास आपके लिए कुछ नहीं है, जितने इंजेक्शन थे हमने आपको लगा दिए, जितने टेबलेट थे हमने आपको दिए, जितने कैप्सूल थे सब हमने खत्म कर दिए अपनी मतलब पे, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा आपके लिए, अब आपके लिए सिर्फ दुआ है। मरीज कहता कि हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएं? तो आज का डॉक्टर कहता कि आप दरगाहों में जाओ, मज़ारों पे जाओ, अल्लाह वालों के पास जाओ, जो जिंदा है उनके पास भी जाओ, और जो दुनिया से चले गए आराम फरमा अपनी कब्र रो गिड़गिड़ाओ करो, अब उन्हीं बुजुर्गों के करम से अब तुम्हारी मुसीबत तुम्हारी तकलीफ दूर होने वाली है। तो आप देखें नौचंदी जुमरात को के यहाँ पर मैंने अपनी आंखों से देखा 25,000 होता है, आंखों तक भी पहुंच जाता है, मुल्क के कोने कोने से नहीं बल्कि पुराना मर्ज है, किसी का 20 किसी का 30 साल पुरानी चला। जी अपनी बात मैं शुरू कर रहा हूँ, खानदानी मर्ज है, और सब लेकर के यहाँ पर आते हैं और अपनी हाजत पेश करते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाते। इसका मतलब है कि मखदूम पाक की जात बारगाह इलाही है, और आपका मकाम मर्तबा वो हमारी फहमो इदराक से बालातर है। क्योंकि एक मिसाल मैं पेश करता हूँ मखदूम पाक की जात को समझने के लिए, बाकी फिर मैं तब विलादत और आपकी आमद दुनिया के अंदर कि देखिए कभी कभी जो मुल्कों के अंदर फौज होती है तो उसमें कुछ फौज ऐसी होती है जिनको कमांडोज कहते हैं, इमरजेंसी में उनको महफूज रखा जाता है, फला रेजिमेंट, अलग अलग तबके के अलग अलग कमांडोज। तो जब कोई इमरजेंसी के हालात मुल्क में आ जाते हैं और दुश्मन के हमले का खतरा होता है तो महाज पे लगाया जाता है। अल्लाह है, नॉर्मल उलमाए कराम जो खिदमत अंजाम दे रहे, बुजुर्गान दीन खिदमत अंजाम दे रहे, अल्लाह वाले खिदमत अंजाम दे रहे, लेकिन कहीं पर इंसानों के ईमान और अकीदे का सवाल है तो अल्लाह ताला अपनी बारगाह से मुंतखब तरीन बंदे को या तो इमरजेंसी में उसका इंतखाब होता है या उसको स्पेशल तरबियत के जरिए तैयार कर जाता है। बस मंजर है खानदानी, वो बादशाही है। बेशक आपके वालिद ग्रामी खानदानी बादशाह थे सिमनान के, मगर अल्लाह ताला ने आपको अता किया हजरत इब्राहिम की दुआ से, और आपको एक कमांडो के तौर पर इमरजेंसी हालात में मुल्क हिंदुस्तान के अंदर तरबियत के लिए भेजा। हजरत अल्लाह पंडवी की तरफ जाओ, वहाँ अपनी तरबियत मुकम्मल करो, और तरबियत मुकम्मल करके जाओ के चौचा की सरजमीन पे, और वहाँ से मैं एक दिन की तबलीग इरशाद का आगाज़ करो। तो मखदूम पाक वहाँ से चलते हैं, यहाँ पर आते हैं, और फिर जो कुछ उसके बाद आज तक जो जलवा नुमाई है वो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये हज़रत यहाँ मैं एक सवाल करना चाहूँगा आपसे कि 700 साल से तकरीबन ये बारगाह मखदूमी फ़ुयूज़ व बरक़ात का मंबा और सर चश्मा है, यहाँ से खल्क़ खुदा फैज़ पा रही है, खल्क़ खुदा को शिफा मिल रही है, आराम व सुकून मिल रहा है, अपनी तमन्नाएँ उनकी तमन्नाओं से गोदें उनकी हरी हो जा रही हैं। मैंने ये रिवायतें भी सुनी हैं कि यहाँ से उन लोगों को शिफायाबी हुई है कि जिनको डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि अब आपके मौत के सिवा कोई इलाज नहीं है। ऐसे लोगों से भी मेरी मुलाकात हुई है जिन्होंने मुझसे बताया कि मेरे पास औलाद नहीं थी, मेरे पास नरीना औलाद नहीं थी, बारगाह मखदूमी में मैं पहुँचा और चौखट पे मैंने अपनी तमन्नाएँ रखीं, और सरकार मखदूम पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़ा व तूफ़ैल मैंने आपसे लो लगाकर बारगाह खुदा में दस्ते दुआ दराज की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे औलाद नरीना से नवाजा, और मेरी जो भी तमन्नाएँ थीं, ख्वाहिशात थीं, आरजुएँ थीं, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उन आरजुओं को पाए तकमील तक पहुँचाया। तो हज़रत 700 साल तकरीबन हो गए इस आस्ताने मुबारका को, जहाँ से फ़ुयूज़ रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ुयूज़ मौलाए कायनात सैयद कायनात हसनैन व करीमैन अलैहिमुस्सलाम जो जारी और सारी हैं। उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर कि अवाम का एक बड़ा जम गफ़ीर रहता है जो अपनी बीमारियों को लेकर यहाँ पर आते हैं, और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा लंबा एरिया है जहाँ तक ये तसव्वुर जाता है कि सरकार मखदूम पाक का जो दरबार है वहाँ से सिर्फ बीमारों को शिफा मिलती है, आसिफ ज़दा और जिन्नात से मुब्तला लोगों ही को यहाँ से शिफायाबी होती है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि सरकार मखदूम पाक जो अपने वक्त के मुजद्दिद हैं, मुफस्सिर हैं, मुहद्दिस हैं, फ़क़ीह हैं और अज़ीम इल्म व मारिफत का समंदर हैं, क्या आपके यहाँ से सिर्फ आवाम को शिफायाबी मिलती है, ये जो ख़वास आते हैं उनके मुतालबे और उनकी ख्वाहिशात की तकमील भी की जाती है? आपके सवाल पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, बहुत बेहतरीन आपने सवाल किया है, और हकीकत है ये एक ऐसी ख़तरनाक गलतफहमी लोगों के दिमाग में बैठ गई है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, और उसका इजाला मैं समझता हूँ आपके सवाल के ज़रिया मैं करूँ और लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाऊँ। मैं थोड़ा सा आपसे अर्ज़ करूँगा कि आसान उर्दू का इस्तेमाल फरमाइएगा। हज़रत मखदूम पाक की जो ज़ात है वो तो मैंने आपको बताया कि कितनी अजीम ज़ात है, और एक गोशा मैंने पेश किया कि 700 सालों से फैज़ रसानी के ज़रिए जारी है।
جی इससे लोगों में शायद ये मैसेज गया कि ये जो बुज़ुर्गों की बारगाह है हज़रत मखदूम अशरफ जैब समनानी जैसे जो ज़वात क़ुदसियाँ हैं, यहाँ सिर्फ जो है करामत और विलायत ही का मामला है। जहाँ तक इल्म की बात है, हुनर की बात है, फ़न की बात है, तो शायद इन बारगाहों से वो चीज़ें नहीं मिलती है। ऐसा नहीं। आप हज़रत मखदूम पाक की ज़िंदगी का जब आप मुताला करेंगे तब हैरत के समंदर में डूब जाएंगे। हज़रत मखदूम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आलम वजूद में आते हैं और 4 साल 4 माह 4 दिन की उम्र होती है, सुल्तान इब्राहिम नूर बख्शी सामानी ने अपने वक्त के अजिल्ला उलमा, खास उस दौर में जो हज़रत मादुद दौला जो अजीम शख्सियत थी, उनको बुलाया गया और उनके ज़रिए रस्म बिस्मिल्लाह खानी अदा की गई और उनकी तरबियत में आपको दिया गया। चुनांचा रस्म बिस्मिल्लाह खानी के बाद सिर्फ 7 साल की उम्र में, यानी सिर्फ 3 साल का अरसा और गुजरता है, 3.5 साल 3.25 साल का, इस उम्र में आपने क़िराअत सबा के अंदर कमाल पैदा कर दिया। जी न सिर्फ कमाल पैदा किया बल्कि कुरान पाक को हिफ्ज़ किया। आम हिफ्ज़ आजकल जो होता है सिर्फ लफ्ज़ी हिफ्ज़ होता है। मेरा तो विजदान ये कहता है कि हज़रत मखदूम पाक ने 7 साल की उम्र में जो आरिफ कामिल थे जी और अपने आरिफ कामिल के मनसब पे फायज होने वाले थे न करीब, सिर्फ उन्होंने लफ्ज़ी तौर पर कुरान को नहीं याद किया होगा, जी बल्कि कुरान के मारिफ, उसके असरार, उसके हकम, उसकी ताबानियाँ, उसकी जलवा नुमाइयाँ, उसके अंदर जो गहराइयाँ थीं, उन तमाम के साथ मखदूम पाक ने कुरान पाक को याद किया। तो 7 साल की उम्र में गौसे पे पहुँच गए उलूम कुरानिया में, जहाँ पर आज 30 साल से लेकर 40 साल का कारी और बड़े से बड़ा आलिम हिंदुस्तान का पहुँचने की जैसे शायद तस्वुर ही करता रह जाता है, मगर वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। और 14 साल की उम्र तक पहुँचते पर अपने जुमला उलूम मुतदाविला, आलिया और आलिया, अक़लिया और नक़लिया, जिनमें जैसा कि आपने इशारा किया इल्म हदीस, इल्म कुरान, उसूल हदीस, उसूल तफसीर, जरह तादील, मंतिक, फ़लसफ़ा, इल्म रियाजी, जबर मुकाबला, ये जो मरवजा उलूम फ़नून थे उस दौर के अंदर सिर्फ 14 साल की उम्र के अंदर जी मखदूम पाक ने दर्जे कमाल, दर्जे इमामत को हासिल कर लिया। आज हिंदुस्तान में सिर्फ बाज़ शख्सियात के हवाले से बातें की जाती हैं, उन्होंने 13 साल या 14 साल की उम्र में फ़रागत हासिल कर ली जुमला उलूम मुतदाविला में। मैं कहता हूँ जहाँ उनका बयान होना चाहिए वहाँ मखदूम पाक का भी बयान होना चाहिए। यही फजल कमाल आपकी ज़ात में भी नज़र आता है। और उसके बाद 10 साल तक आपने हुक्मरानी किया। 24 साल की उम्र को जब आप पहुँचते हैं तो आपके दिल में अल्लाह ताला ने जो जिस अजीम मकसद के लिए आपको मुंतखब कर रखा था और दुनिया में भेजा, उस मकसद का हुक्म दिया और उनके दिल में ये तो उनके दिल में डाल दिया, कब तुम्हारा सल्तनत और खिदमत गुजारी खल्क का काम खत्म हुआ, अब चलो मारिफत की दुनिया में, तसव्वुफ की दुनिया में, तज़किया की दुनिया में, पैगाम रिसालत की तरसील की दुनिया में। तुम्हारे नाना जान का जो पैगाम है, जिसकी वजह से मुस्तफ़ा जान रहमत खातिमुल अंबिया दुनिया में आए, पत्थर खाए, लोगों ने आपको जादूगर कहा, आपके रास्तों में कांटे बिछाए, पत्थर मार मार करके आपके दंदानी मुबारक को शहीद किया, लहूलुहान किया, उस मकसद के लिए उठो। अल्लाह ने भेजा। चुनांचे आप वहाँ से चलते अपने तख्त व ताज को छोड़ करके हज़रत आला उल हक पंडवी रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह करम में आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर आकर के इल्म इदराक हासिल करते हैं, मारिफत की दुनिया में महारत हासिल करते हैं, और फिर आप अपने शेख के हुक्म से यहाँ पर आकर खिदमत देना शुरू करते हैं। आपने 2 मरतबा पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। आज हम हिंदुस्तान नहीं, हम यूपी का चक्कर नहीं लगा सके 40-50 साल की उम्र में है। यूपी के चक्कर नहीं लगा पाता आदमी, अपने स्टेट के चक्कर नहीं लगा पाता, तो मुल्क का चक्कर क्या लगाएगा। और दुनिया में 250 ममालिक इस वक्त हैं। कौन ऐसा है बहुत बड़ा अल्लामा फहामा मुहक्किक और मुफ्ती है जिसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया हो। मखदूम पाक ने जिस दौर में घोड़ों की सवारी की जाती, ऊँटों की सवारी की जाती, खच्चरों की सवारी की जाती, मखदूम पाक उस दौर में भी बेशतर हिस्सा सफर का पैदल किया है। इब्ने बतूता की रहलत इब्ने जुबैर बड़ा मशहूर है। हमने दौर अल्हम्दुलिल्लाह अरबी ज़बान में असल जो नुस्खा उसका मैंने मुताला किया और काफ़ी सिलसिले में अभी भी अल्फाज जुमले उनके मफाहिम हैं, मगर इब्ने जुबैर का सफ़रनामा और इब्ने बतूता का सफ़रनामा भी शायद आपको वो लुत्फ़ और सुरूर नहीं देगा जो लताइफ़ अशरफी, तहफ़ अशरफी में हज़रत मखदूम पाक के सफ़र की जो तफसीलात हैं और जो उसके अंदर असरार और मारिफ का जो बयान है, अगर आप मुताला करें तो आपके 14 तबक रोशन होते चले जाएंगे। तो सफ़र के दौरान जिस खित्ते जिस इलाके में जाते इस ज़बान में खिताब फरमाते, तो दीन की दावत देते और रिसालत तसनीफ फरमाते, उनकी हिदायत के लिए किताबें लिख करके देकर आगे बढ़ जाते। आज लोग टेलीविजन पे, चैनल पे, वेबसाइटों पे, पोस्टरों में बयान हो रहा है, तबलीग हो रही है, हज़रत 100 400 किताब लिखी, हज़रत 500 किताब लिखी। हज़रत मखदूम पाक तो अपने फजल कमाल को तमाम बुजुर्ग छिपाते हैं। इन्होंने तो नहीं प्रचार किया मुरीदों को लेकर के कि मैंने फलां किताब लिख दी, फलां रिसाला लिख दिया। ये तो ज़माने के दस्तबुर्द से सैकड़ों रिसाले ज़ाय हो गए। जो महफूज रह गए वो भी तकरीबन 39 या 40 के करीब रिसालों का नाम हमें मिलता है। उनमें से बहुत हमारे उलमा ने हमारे मौलाना रसूल साहब ने काफ़ी जमा के लोगों तक पहुँचाया और मसलसल काम जारी अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अशरफ मिल्लत की क़ियादत में तहक़ीक़ और रिसर्च का। और अनक़रीब इंशाअल्लाह ताला ऐसे गौहर नायाब इल्मी दुनिया में आपको जो हज़रत मखदूम पाक के हवाले से पेश किए जाएंगे जिसे देख करके दुनिया जो है दंग रह जाएगी। तो आपने जो सवाल किया कि क्या यहाँ पे सिर्फ आसेब और बलियात का इलाज होता, नहीं,
मखदूम पाक ने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले उलमा की बीमारियों का इलाज किया, बेशक अपने रूहानी तसरुफ के जरिया भी और अपने इल्मी जाहो जलाल के जरिया भी। जी बड़े बड़े मुफ्तियान ज़माना हिंदो सिंध से लेकर के मुल्क रूम तक, रूम से लेकर के समनान और जो है खुरासान और असफहान तक, ताशकंद, समरकंद, बुखारा और तरमस तक आपने पूरी दुनिया के चक्कर, अपने ज़माने जो अपने आप को बड़े बड़े कचकुलाइल वफन समझते थे, वाए मखदूम पाक की बारगाह में मुश्किल से मुश्किल सवाल किया दुनिया के हर इल्म फन का, और मखदूम पाक ने चुटकियों में इस तरीके से उनके तमाम मसाइल को उड़ा दिया हवा में। कोई लोग देखते रहे आपके कदमों में गिर के कहा सरकार ये हमारा ऐसा एतराज़ था, ऐसा मसला था जिसे हम दर्जनों सालों से लेकर के हम भटक रहे थे, और जो है हम हमारे जहनो दिमाग के अंदर जो है पेचोताब उबल रहा था कि कौन हमारे इस मसले का हल करेगा। सरकार आपने हल फरमा दिया। चुनांचा खासतौर में से एक बहुत अहम वाक़या मशहूर है कि वो शेखुल हिंद हज़रत शहाबुद्दीन मुफ्ती शहाबुद्दीन आते हैं और आपके सामने जौनपुर के अंदर अपने इस मसाइल को, अपने एतराज़ात को रखते हैं। तो रखते क्या हैं, उनके दिल के अंदर जो था मखदूम पाक ने पहले उसे ओपन कर दिया, नुमाया कर दिया। काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी जो है, जैसा कि आपने कहा, हजरत मखदूम पाक अपने ज़माने के मुफ्ती आज़म थे, बेशक अपने ज़माने काजी आज़म थे, अपने ज़माने के खतीब आज़म थे, अपने ज़माने के मुहक्किक आज़म थे, अपने ज़माने के मुफस्सिर आज़म थे, अपने ज़माने के वसूली आज़म थे। तो चाहे वो इल्म तफसीर के उसूल हो, चाहे इल्म हदीस के उसूल हो, चाहे इल्म फ़िक़्ह के उसूल हो। जी तो आपके बारे में मशहूर है कि 24 जिल्दों पर मुश्तमिल अल-फतावा अल-अशरफिया के नाम से मिस्र की लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। अरबी ज़बान में उसके अल्लामा अब्दुल हई लखनवी ने भी आपकी इस किताब की तरफ इशारा किया है। मैंने जब फेसबुक के अंदर डाला तो बहुत से लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन काश कि हमारे पास इतना सरमाया होता, हम जाकर के वहाँ की खाक छानते और उस किताब को लेकर आते। इंशाल्लाह ज़रूर हम उसे लेकर के आएंगे और वो इंशाल्लाह ताला गौहर नायाब को इंशाल्लाह दुनिया के सामने पेश करेंगे। मैं 2 लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ कि हमारे बहुत से बुजुर्गों की सीरत को हमारे मौलवियों ने, हमारे उलमा ने, कुछ जो है लठबाजों ने ऐसा फेमस कर दिया, मशहूर कर दिया कि बाबा है चिल्ले वाले, झंडे वाले, तबले वाले, रबने वाले, कव्वाली वाले, इसके साथ इनके कुछ नहीं। मैं कहता हूँ आप अपना किबला दुरुस्त करिए। मखदूम पाक की ज़ात तो बहुत बड़ी ज़ात, आज हुज़ूर अशरफ मिल्लत हैं, कायदे मिल्लत हैं, और दीगर जो खानवादे के तलबा हैं, सातज़ा हैं, और मैं कहता हूँ कि नौआमूज़ उलमा हैं जी नौखेज जो हमारे नौजवान हैं, मैं इस खानवादे के, आओ उनसे 2 हाथ करो। जी इस बच्चे से खानदान के जो है बच्चों का मामला ऐसा कि जैसे तालाब में मछलियों को तैरना नहीं सिखाया जाता, इस खानदान के बच्चों को जो है बोलना न सिखाया जाता, न लिखना न सिखाया जाता है। इस खानदान का बच्चा कलम उठाता है तो अपने ज़माने का गज़ाली होता है, ज़बान खोलता है तो राज़ी जमा खतीब दौरा होता है, साहबानुल हिंद होता है। इसीलिए जो है मखदूम पाक की बात बाद में करना, पहला मखदूम पाक के औलादों की बात कर लो, हुज़ूर अशरफ मिल्लत की बात कर लो, हुज़ूर कायद मिल्लत की बात कर लीजिए, यहाँ के देगर अकाबिर फजल कमाल हैं, हज़रत अशरफुल उलमा उनकी बात कर लीजिए, हज़रत मुस्तफ़ा अशरफ है जैसे शेखुल हदीस जिन्होंने हदीस पर ज़बरदस्त काम किया, उनकी बात करिए। पहले इनके बारगाह में आइए और अपना किबला दुरुस्त करिए, फिर आगे बढ़िएगा। जी हज़रत माशाल्लाह, आपने अपनी गुफ्तगू के ज़रिए मखदूम पाक रदी अल्लाह ताला अन्हों का तारुफ़ कमा हक़्क़ुहु तो हम नहीं कह सकते, अगर सारी ज़िंदगी भी हम सरकार मखदूम पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत बयान करते रहें और उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डालते रहें, तब भी कमा हक़्क़ुहु सरकार मखदूम पाक की ज़ात वो मुक़द्दस और मुबारक ज़ात है कि हम उनका तारुफ़ पेश नहीं कर सकते। लेकिन बहुत हद तक आपने सरकार मखदूम पाक की ज़ात पर और आपकी सीरत पर, आपकी शख्सियत पर रोशनी डाल दी है, जिससे काफ़ी हद तक आपके मुरीदीन, मुतअल्लिक़ीन और मुतवस्सिलीन और आपसे मोहब्बत करने वाले और वो लोग जो अभी तक सरकार मखदूम पाक की ज़ात से वाकिफ़ नहीं हैं, काफ़ी हद तक वो आपके ताल्लुक़ से जान चुके होंगे। अब यहाँ मैं कुछ बातें अर्ज़ करता चलूँ कि जैसे कि अभी हमारे नाज़रीन और सामाईन देख रहे होंगे कि ऊपर का जो हिस्सा है सफ़ेद और ग्रीन कलर में, और जहाँ लाइटिंग नज़र आ रही है वहाँ 2 गुंबद नज़र आ रहे होंगे। जो हम जिस तरह से खड़े हैं, इस तरह से अगर दाहिनी तरफ देखा जाए तो सरकार मखदूम पाक का वो शाही आस्ताना है और वो शहंशाह का गुंबद नज़र आ रहा है, जिसको गुंबद अशरफी के नाम से भी हम याद कर सकते हैं। और दूसरी जानिब जो जिस पर लाइटिंग नज़र आ रही है, जिस पर रोशनी नज़र आ रही है, उसको मस्जिद औलिया के नाम से याद किया जाता है। और इस मस्जिद की बड़ी फ़जीलत है, हमने अपने बुज़ुर्गों से, अकाबिरीन से सुना है कि ये वो मस्जिद है जहाँ पर रात में औलिया कराम की आमद होती है और औलिया कराम, सूफिया इज़ाम जो सिलसिला चिश्त के हैं या दिगर सलासिल के हैं, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, उनकी नशिस्तें होती हैं और यहाँ पर नमाज़ें भी अदा की जाती हैं। और ये जो नीचे तालाब नज़र आ रहा है, ये वो तालाब है जिसको नीर शरीफ कहा जाता है। और इसकी रिवायत ये है कि सरकार मखदूम पाक ने अपने ही ज़माने में, अपने असर में, अपने ही अहद में उन लोगों से इसकी खुदाई कराई है जिनका मकाम अब्दालियत पर फाइज थे, जो कुतुबियत के मकाम पर फाइज थे। और हर कुतुब और हर अब्दाल
जो इसकी खुदाई कर रहे थे उनका तरीक़ा कार और उनका अंदाज़ खुदाई ये था कि वो हर ज़रब पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे और उसके बाद इसकी दूसरी ज़रब को इस्तेमाल करते थे। और उसके बाद जब इसकी खुदाई पूरी हो गई है तो सरकार मखदूम पाक ने इसमें आब ज़मज़म डाला। उसके बाद इरशाद फरमाया ये शिफा खाना है और ये यहाँ से शिफा याबी लोगों में तकसीम होगी। और ये मैंने जो तालाब खुदवाया है इसमें जो पानी जारी हो गया है, अब यहाँ से लोग शिफा पाएंगे। और आज हम देख रहे हैं कि आज भी लोग यहाँ से शिफा याब हो रहे हैं। कुछ लोग इसको पीने के लिए भी ले जाते हैं, यहाँ लोग गुस्ल भी करते हैं। गुस्ल करने का तरीक़ा यहाँ पर यह है कि पहले लोग अपने घरों पर या जहाँ पर उन्होंने क़याम ताम का इंतज़ाम किया हुआ है, कमरे लिए हुए, गेस्ट हाउस या खानका में रुके हुए हैं, पहले वो वहाँ पर नहाते हैं, गुस्ल करते हैं ताकि पाकी हासिल हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर आके सिर्फ़ एक शिफा याबी के लिए पानी को मखदूम पाक के इस तालाब से अपने जिस्म पर डालते हैं, जिनको सुकून मिलता है। और लोग इसको पीने में भी इस्तेमाल करते हैं, उससे भी शिफा याबी होती है। अब मैं मौलाना मकबूल साहब की तरफ आखिरी सवाल करूँगा। और इससे पहले एक GM मुजद्दिद अशरफ़ी साहब हैं, वो सरकार मखदूम पाक की बारगाह में सलाम अर्ज़ करते हैं। सरकार आपके ये ग़ुलाम हैं और आपके चहीते हैं, आपके मुरीद हैं, आप इनका सलाम कबूल फ़रमाएँ और साथ ही इनके लिए दुआ फ़रमाएँ आपके अल्लाह तबारक व तआला इनकी तमाम तमन्नाओं को, ख्वाहिशात को पाए तकमील तक पहुँचाए। अर्ज़ ये है कि 700 साल से ये आस्ताना मरकज़ रूहानियत और मरकज़ इल्म मारिफत बना हुआ है और यहाँ से फ़ुयूज़ व बरक़ात बट रहे हैं। जिस मिशन को लेकर सरकार मखदूम पाक ने हज़ारों मील का सफ़र किया, सैकड़ों मील का सफ़र किया, सिमनान से और हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए जिस मिशन को लेकर, और सारी ज़िंदगी यहाँ पर आने के बाद सरकार मखदूम पाक ने जिस मिशन का काम किया, जिस मिशन को आगे बढ़ाया, आज आपका ख़ानदान मौजूद है और आपके ख़ानदान में आपके फ़र्जंदान बहुत सारे मौजूद हैं, बेशुमार मौजूद हैं। तो मैं बहुत लंबी फहरिस्त में न जाकर आपसे सवाल करता हूँ कि किसी एक शहज़ादे का सरकार मखदूम पाक के एक शहज़ादे की ज़िंदगी पर रोशनी डालें जो आज भी सरकार मखदूम पाक के मिशन को आगे बढ़ाए हुए हों। और यहाँ मैं एक बात और अर्ज़ करता चलूँ, ये ख़ानदान जो खानवाद अशरफिया कहलाता है, हम अगर इसकी तारीख़ का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि 700 साल से दुनिया में जितनी भी शोबेजात हैं और ज़िंदगी के जितने मामलात हैं, जितनी ज़रूरतें हैं, हर शोबे में अगर हम देखें तो ये ख़ानदान ज़िंदगी के हर शोबे में उम्मत की रहनुमाई करता हुआ नज़र आता है। कोई शोबा ज़िंदगी का ऐसा नहीं है, ख़ास सियासत का हो, समाजियत हो, इल्म मारिफत हो, या इसके अलावा जो भी शोबाजात दुनिया में राइज हैं, हर शोबे में खानवाद अशरफिया का कोई ना कोई फ़र्जंद काम करता नज़र आएगा। मैं सिर्फ़ एक या दो शख्सियतों के हवाले से मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, किसी सरकार मखदूम पाक के एक या दो शहज़ादे के ताल्लुक़ से आप रोशनी डालें जो इस वक्त सरकार मखदूम पाक के मिशन पर इशारा किया है, उस इशारे को मैं समझ रहा हूँ। हकीकत यह है कि जैसा कि मैंने कहा कि मखदूम पाक का जो यहाँ पे ये हरा भरा चमन आबाद है, बेशक इसमें रंग बिरंगे फूल, सबकी खुशबू अलग अलग, उनका रंग रोगन, उनका खत्त खाल, उनकी जमालियात सब अलग अलग, और हर फूल अपनी जगह बेमिसाल है, लाजवाब है। कोई शख्स आता है चमन में और देखता है किसी एक फूल को, तो वो फूल इतना ज़्यादा जानदार है, ताबदार है, रोशन और ताबनाक है, जिसकी खुशबू मशाम जा को मुअत्तर करती आने वाले की। तो ये समझता है कि सब कुछ यही फूल यहाँ पे है। तो एक ही फूल की ज़ियारत में और उसकी खुशबू से मस्त होने में वो गुम होकर के रह जाता है, उसे दूसरे फूलों की तरफ जाने का मौका ही नहीं मिलता। तो मैं तो अभी एक ही फूल की खुशबू में गुम हूँ, मुझे भी किसी और जाने का मौका नहीं मिल रहा है। हमारी ये जो खानवादा एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन इसमें 25,000 नौउम्र से लेकर के बुजुर्गों तक शहजादेगान मुख्तलिफ उम्रों के पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ खित्तों में हिंदुस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह सरगर्म अमल है जी, दीन की तबलीग इशाअत का काम कर रहे हैं, रुश्द व हिदायत, तबलीग व दावत और तरीक़त व तसव्वुफ़ की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं आज इस वक्त जो एक तहरीक बरपा है पूरे मुल्क में, और जिसकी धमक तकरीबन इस बैक वक्त 40 मुल्कों में महसूस की जा रही है, उसके बानी का नाम मेरे जहन में आ रहा है जी। और ये नाम जो इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है वो किसी दुनियावी मफाद के तहत या लालच के तहत या किसी और जज्बे के तहत नहीं आ रहा है। हमारे पीर कामिल, हमारे शेख, जिनके हाथों में मैंने 1980 में हाथ दिया या 82 या 81 में गोरखपुर के ज़मीन पीर तरीक़ा से सैयद कुमैल अशरफ साहब कबीला शरीफ जिलानी दामद बरकहमतुल कुदसिया है, उनसे मुझे अक़ीदत व मोहब्बत आज भी मेरे दिल में उनकी जगह है। लेकिन आज मैं जिस तहरीक के बानी से जुड़ा
ख़ास तौर पर 2016 से जब ये तहरीक की आवाज़ मेरे कानों में आई और मैंने महसूस किया कि ये तहरीक मुल्क के अंदर अहले सुन्नत व जमात जो कसम पुरसी के आलम में, यतीमी के आलम में जो भटक रहे हैं और किसी ने जान दहिदा की तलाश में और चाह रहे हैं कि कोई ऐसा शख्स आए जो ख़ासतौर पर तंजीम व तहरीक की दुनिया में हमारी दस्तगिरी करे। और मेरे जहन में ये चीज़ें थी, इसलिए कि मैंने जामिअत अल-अशरफ मारिकुर से लेकर दारुल नदवतुल उलमा तक का मुताला किया, उनकी तंजीमी सलाहियतों का, उनके तरीक़ेकार का मैंने गौर किया। तो मैंने देखा कि तंजीम के मामलात में हमारी तंजीम बहुत ही कसम पुरसी के आलम में, खस्ताहाली के आलम में है, चाहे ख़ासतौर पर सियासत की दुनिया हो, सहाफ़त की दुनिया हो, मीडिया की दुनिया हो और उसके साथ साथ तंजीम व तहरीक की दुनिया हो, ऑर्गेनाइजेशन की दुनिया हो, मूवमेंट की दुनिया हो। यहाँ पर दिगर तंजीम, अगर मैं मकातिब फ़िक्र की बात करूँ जो लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, अभी दर्जनों तंजीम का नाम मैं आपको गिनवा दूंगा, लेकिन अपनी जमात की बात करें तो किसी तंजीम की उम्र 2 साल 4 साल 5 साल से ज़्यादा नहीं होती। शायद अगर 18 साल भी वो जिंदा रहती तंजीमें कम से कम जवानी की सरहद को पहुँच जाती, मगर तंजीमें जवानी की सरहद में नहीं पहुँचती। नाबालिग की दौर ही में ही इनका इंतकाल हो जाता है, माँ बाप के लिए ज़ख़ीरा खर्च बन करके चली जाती है, ये अल्लाह को प्यारी हो जाती है। मगर ये तंजीम जो तकरीबन 2005 में जिसकी बुनियाद रखी गई और सिर्फ जो है 15-16 सालों के अंदर ये तहरीक आलमगीर हो गई, उसका नाम है ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड। और इसके बानी शेखुल हिंद नबीर सरकार कला शहजादे शेख आज़म हुज़ूर अशरफ मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद अशरफ मियां साहब क़िबला के छोची अशरफी अल जिलानी बानी व सदर ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड, चेयरमैन वर्ल्ड सूफी फोरम की ज़ात गिरामी है। आपने 15 साल की मुख्तसर सी मुद्दत में जो इनकलाब पैदा किया है, उस इनकलाब को देखने के लिए हमारे माजी के बुजुर्गों में हज़ारों अफराद, हज़ारों उलमा, हज़ारों मुहद्दिसीन, हज़रत मुजाहिद मिल्लत जैसे लोग दुनिया से तशरीफ़ ले गए। वो इनकलाब ना देख सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इनकलाब आ गया है। बेशक खासतौर पर सन 2016 में जो दिल्ली की सरजमीन पर वर्ल्ड सूफी फोरम के बैनर तले असीम शान जो इनकलाबी कॉन्फ्रेंस, उसने पूरी दुनिया के अंदर एक इनकलाब पैदा किया, हिला करके रख दिया। अहले सुन्नत व जमात की नुमाइंदगी का हक अदा किया इस प्रोग्राम ने, और पूरी दुनिया को पता चला कि अहले सुन्नत व जमात नाम की कोई एक जमात हिंदुस्तान में भी है। हम कहते हैं कि हम 80% है, मगर आप कहीं तो दिखाई नहीं देते 80%। दुनिया के तमाम मुल्कों में दूसरे मकातिब फ़िक्र की तर्जमानी है, मगर ये पहला मौका था कि जब 40 मुल्कों का डेलीगेशन आया हुआ था। लोग तो कह देते हैं हमारे फ़लाँ जनाजे में फ़लाँ जगह पर 40 मुल्कों से आ गए, कोई कहता 60 मुल्कों से आ गए, पता लगाओ तो 10 मुल्कों का नाम गिनवा नहीं सकते। हमारे पास तो पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। आप देखिए जिन जिन मुल्कों के मंदबीन आए, वहाँ के डेलीगेशन आए, वहाँ के जो मबूसीन आए, और वो ऑन रिकॉर्ड दुनिया ने देखा उसे। 40 चैनल के अंदर बैक वक्त उस प्रोग्राम की नशरियात अमल में आ रही थी, यानी पूरा मुल्क और पूरी दुनिया एक तरीके से जो है एकदम ज़ेरो ज़बर हो गई थी। इस तहरीक ने अपने वजूद का लोहा मनवा लिया, और लोगों ने कहा कि हकीकत में कोई एक शख्स ऐसा है मुल्क के अंदर जो अहले सुन्नत व जमात के दरमियान है, और जो इस वक्त अहले सुन्नत व जमात को आलमी सतह पर मुतारफ़ करवा रहा है, और जो गलतफहमियाँ अहले सुन्नत व जमात के हवाले से मसलन इसको एक जो है नाखादा कौम के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया जाता है, एक गंवार और अनपढ़ के तौर पर पेश किया जाता है। ये चादर वाले हैं, चूमा चाटी वाले हैं, फूल हार मलीदा वाले, फातिहा गागर चादर गागर वाले, इसके अलावा बेचारी न तंजीम जानते, न तहरीक जानते, न सियासत जानते, न सहाफ़त जानते। हुज़ूर अशरफ मिल्लत खड़े हुए, और दिल्ली में आने से पहले आपने पिछले 2010 से लेकर के 15 तक में आपने मुरादाबाद में जब मुस्लिम महापंचायत का प्रोग्राम किया, बीकानेर के अंदर किया, आपने भागलपुर के अंदर किया, आपने जगदीशपुर के अंदर किया। माफ़ कीजिएगा, मैं किसी प्रोग्राम में शरीक नहीं हुआ हूँ, लेकिन गायबाना मैं दूसरों के अखबारात में, दूसरों की मीडिया में मैंने पढ़ता रहा और देखता रहा, इन तमाम चीज़ों को सुनता रहा। खासतौर पर मुरादाबाद की मुस्लिम महापंचायत को जब मैंने नई दुनिया के अंदर मैंने पढ़ा, हाँ सुन्नी कॉन्फ्रेंस नई दुनिया के अंदर जब मैंने पढ़ा तो मैं हैरतज़दा रह गया, और मैं कहा कि अनकरीब मैं इस शख्स से मुलाकात करूँगा जिसने इतना बड़ा इनकलाब हिंदुस्तान के अंदर पैदा किया। आखिरकार अल्लाह ताला ने सूफी कॉन्फ्रेंस के अंदर मुलाकात की सूरत पैदा कर दी। बहुत से लोगों को बहुत से एतराज़ात हैं, उस पर हमने बहुत कुछ लिखा, आज भी लिख रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। मैं लोगों से यही कहूँगा कि लोग अपने फ़िक्र व नज़र में के अंदर तब्दीली पैदा करें, अपनी सोच में तब्दीली पैदा करें, अपनी सोच के अंदर कुशादगी पैदा करें, दूसरों के लिए दूसरी की बातों सुनने का जज्बा और हौसला अपने दिल के अंदर पैदा करें, और क्या कहते हैं उसको गैर जानिबदार होकर के ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड की क़यादत, उसके कारनामों, उसकी खिदमत और उसके दायरे कार का मुताला कर देखें तो आपको महसूस होगा कि ये 70 सालों के अंदर आज़ादी के बाद अहले सुन्नत व जमात के लिए सबसे बड़ा मौका था, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। अगर चाहते अहले सुन्नत व जमात के तमाम तबक़ात, तमाम खानक़ाहें जो हमारी नामी गिरामी खानक़ाहें जिनको आज दावा है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नुमाइंदा खानक़ाहें हैं, हुज़ूर अशरफ मिल्लत को एक बच्चा समझ करके, तो अपने से छोटा ही समझ करके अगर आज उनके जो है बाजू को पकड़ते और संभालते और आगे बढ़ते और सर पे दस्ते शफ़क़त रखते। मैं नहीं कहता कि आप जो है उनकी क़यादत में चलिए, उनके बैनर के नीचे चलिए, उनके झंडे के नीचे चलिए, कभी आपने ये दावा नहीं किया। आपने तो कहा आप आगे आइए, आप क़यादत कीजिए, आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। हर जगह दावतनामे तक भेजे गए, मगर लोगों ने दावतनामों के जवाब में उसके
اس کی مخالفت میں اور اس تحریک کو سبوتاز کرنے کے لیے کتابیں لکھی، مقالے لکھے، میڈیا پر اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا، فتاوے جاری کیا، اور جو کچھ کرنے کے لیے سب کچھ اس نے کیا. لیکن دنیا نے دیکھا الحمدللہ حضور اشرف ملت نے اور اس تحریک سے وابستہ لوگوں نے جس طریقے سے ماضی میں دیگر مقامات پہ عالمی کانفرنس کی، انہوں نے دہلی کے اندر بھی عالمی کانفرنس کیا اور پوری دنیا کے اندر ایک میسج دیا. اس لیے اس تحریک کی بنیاد پر، علی گڑھ علماء مشائخ بورڈ کی بنیاد پر، میں اس وقت خانواد اشرفیہ میں حضور اشرف ملت کی ذات کو اپنی پسندیدہ ذات قرار دیتا ہوں. اور ایسا نہیں ہے کہ حضور اشرف ملت صرف تنظیم کی مہارت رکھتے ہیں، تحریک کی مہارت رکھتے ہیں، صرف سیاست صحافت کی بات کرتے ہیں. نہیں، میں ان کی نہ جانے درجنوں مجلسوں میں شریک رہا ہوں، ان کی گفتگو سنا، ان کے بیانات کو سنتا ہوں، ان کے متعلق اس حد پہ میں حیران رہ جاتا ہوں. اور خود ایک مرتبہ اپنے اس راز سے پردہ اٹھایا تھا کہ باضابطہ ہمارے والد گرامی نے حکم کیا اور ہمارے لیے اساتذہ ٹیوٹر متعین کیے کہ میں باضابطہ درس نظامیہ کی تکمیل کروں. الحمدللہ جامعہ اشرف سے حضور اشرف ملت نے لوگ اپنی غلط فہمی دور کر لیں، باضابطہ درس نظامیہ کی تکمیل کی یہاں کے ماہر ترین اساتذہ کی قیادت میں اور ان کی نگرانی میں، اور باضابطہ مختلف علوم میں، فقہ میں، اصول حدیث میں، تفسیر میں، اور جو بھی علوم و فنون ہے اپنے جو مروجہ مدارس اسلامیہ کے اندر مطالعہ سے خاص طور پر انہوں نے جو اپنے آپ کو آگے بڑھایا. ممکن ہے سندیں جس طریقے سے تقسیم ہو رہی ہیں، سندیں نہ تقسیم کی ہو، نہ اپنے ہاتھوں میں لیا ہو، مگر آپ نے جو 4-5 سالوں تک جامعہ اشرف کی لائبریری میں بیٹھ کر کے آپ نے جو مطالعہ کیا، آپ خود فرماتے ہیں کہ لائبریری کو میں نے مطالعہ کر کے خالی کر دیا ہر موضوع پہ. یہی وجہ ہے کہ آپ الحمدللہ بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں آپ خطاب کرتے ہیں، بڑے حساس موضوعات پہ. کبھی کبھی میری سانس رک جاتی ہے، ایسے موضوع پر حضرت پہنچ جاتے ہیں گفتگو کرتے کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں کچھ معاملہ کھڑا ہو جائے، پھسل جائے. لیکن میں نے دیکھا کہ حساس ترین موضوعات پر بھی حضور اشرف ملت بڑی مہارت کے ساتھ، کمانڈ کے ساتھ، طاقت کے ساتھ خطاب کرتے ہیں اور اپنی بات کو تلوار کی دھار پر کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں. تو اس طریقے سے علوم دینیا کا بھی، آپ کا تاریخ علوم کا بھی، اور خاص طور پر اہل بیت رسالت کے ساتھ تاریخ میں جو کچھ ہوا اس پر آپ کی گہری نظر ہے. اور آپ نے یہ جو ساری تحریک برپا کی ہے اس کا لباب خلاصہ یہ ہے، اہل بیت رسالت پہ 1400 سالوں کے اندر مختلف طبقات کی طرف سے علمی دنیا میں، تاریخی دنیا میں، روایات کی دنیا میں، مرویات کی دنیا میں جس طریقے سے ظلم ہوا اور ان کے فضائل و مناقب کو دبایا گیا، چھپایا گیا، اس کے خلاف جدوجہد کا نام علی گڑھ علماء مشائخ بورڈ ہے. جی. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. آپ دیکھیں صرف 5-6 سالوں کے اندر تحریک چلانے کی بنیاد پر آج دیکھیں آج 28 صفر المظفر کو ہم نے اثر کے وقت بھی پروگرام کیا، اس وقت آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہیں. اور میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا میں ہزاروں لوگوں نے کلپ ڈالی، بیانات ڈالے، پوسٹیں ڈالی، لاکھوں پوسٹیں ڈالی، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ واقعی میں شہزاد مصطفیٰ، راکب دوش مصطفیٰ، گلگو قبا، حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی محبت میں لوگوں کے دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. یہ وہ تحریک جسے اشرف ملت نے چلائی، اور ان کی تحریک کی بنیاد پر دیگر خانوادے کے لوگ، خانقاہوں کے لوگ، محبین اہل بیت، غلامان اہل بیت، ان کے اوپر جان چھڑکنے والے، اپنے خون کو چھڑکنے والے، پسینے کو بہانے والے لوگ آج اس تحریک سے جڑ رہے ہیں اور ان کے پیغام کو لے کر کے دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچ رہے ہیں. میں ان تمام لوگوں کو جن لوگوں نے امام حسن مصطفیٰ کا عرس منایا، پوسٹیں لکھی، لائک شیئر کیا، بیانات اپنے ریکارڈ کروائے، کلپس ڈالی، اپلوڈ کیا، ہمارے حضرت علامہ عرفان احمد اشرفی صاحب الاشرف نیٹ ورک کے ذریعہ ان خدمات کو انجام دے رہے ہیں. میرا بھی مخدوم اشرف کے نام سے کریٹو گروپ ہے اور اس کو ہم نے نام چینج کر کے الاشرف کریٹو گروپ کر دیا ہے. جب سے لاک ڈاؤن ہوا اس کی وجہ اس کے بعد میں کچھ دیگر کاموں میں مصروف رہا ہوں. اب وہ میری مصروفیت ختم ہو چکی، انشاءاللہ پھر میں بھی پارکاب ہوں گا اور اس تحریک کا حصہ بنوں گا. اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے اور فیضان مخدوم پاک سے مالا مال فرمائے. یہاں پر میں عرض کرنا نہیں بھولوں گا جو حضرت علامہ عرفان صاحب نے کہا کہ ہزاروں گود ہری ہو جاتی ہے مخدوم پاک کے فیضان سے. ابھی دیکھیے ہالینڈ کے اندر ہمارے علامہ عرفان عالم صاحب اشرفی ہیں، حضرت کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، ان کا پورا خاندان. اللہ تعالیٰ نے کل ہی ان کو چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے. حضرت نے ان کا نام غالباً جو رکھا مرتضیٰ رکھا ہے، سبحان اللہ، علی مرتضیٰ یا محمد مرتضیٰ ان کا نام رکھا. میں نے کہا حضرت نے جو نام منتخب فرمایا ہے آپ اسی نام کو رکھیں، اب کسی اور نام کی ضرورت نہیں ہے. تو ماشاءاللہ فیضان مخدوم پاک ہے، ان کی بھی گود ہری ہوئی، پہلے سے بھی ان کے صاحبزادگاں 3 ہیں. مخدوم پاک نے چوتھا فرزند انہیں عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحت و عافیت عطا فرمائے. حضور حسن میاں صاحب قبلہ، حسن میاں شدید بیمار ہیں، لکھنؤ کے اندر ایڈمٹ ہے. حافظ قمر الدین صاحب رضوی جو رضوی کتاب گھر کے مالک ہیں، بہت ہی سنجیدہ سلجھے ہوئے شخص ہیں اور ہمیشہ ہماری وہ دفاع کرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں. اس لیے اس محبت کے تقاضا ہے کہ آج میں بارگاہ مخدوم پاک میں ان کے لیے بھی دعا کروں. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو جلد از شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ ابھی ہم جو طریقہ اہل سنت ہے اس انداز سے دعا کریں گے، اور جن جن محبین نے بارگاہ مخدومی میں سلام کے لیے عرض کیا ہے ان کا سلام بھی پیش کریں گے، اور جنہوں نے دعا کے لیے عرض کیا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے دعا بھی کریں گے. ماشاءاللہ آپ نے اپنی گفتگو کے ذریعے بہت حد تک کنفیوژن کو دور کر دیا ہے کہ
صوفیہ کرام کی جو بارگاہیں ہوتی ہیں اور ان کی جو خانقاہیں ہوتی ہیں اور ان کے جو نشست گاہیں ہوتی ہیں وہاں پر بڑی کشادگی ہوتی ہے. وہاں پر اس طرح کا برتاؤ اور اس طرح کا سلوک نہیں کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غیر مذہب سے تعلق رکھتا ہے, غیر دھرم سے تعلق رکھتا ہے, اس کا مشرب الگ ہے, اس کی ذات الگ ہے, اس کا علاقہ الگ ہے, تو وہاں ان تمام چیزوں کو نظر میں نہیں لایا جاتا ہے. ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے سرکار غریب نواز کا وہ پیغام کہ محبت سب کے لیے, نفرت کسی سے نہیں, اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہی صحیح معنوں میں اور حقیقی معنوں میں صوفی ازم ہے جس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں. سرکار مخدوم پاک جس صوفی ازم کو لے کر ایران سے, سمنان سے ہندوستان تشریف لائے تھے, آپ کے خاندان کے بہت سارے افراد اور بہت سارے مشائخ اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. اب میں تمام لوگوں کا تو ذکر نہیں کر سکتا ہوں, بہت سارے لوگ ہیں خاندان میں جو سرکار مخدوم پاک کے مشن کو, جو محبت کا مشن ہے, جو الفت کا مشن ہے, جو یکجہتی کا مشن ہے, باہمی تعلق داری کا مشن ہے. اگر جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ذرا ذرا سی باتوں پر انگشت نمائی کرنے لگتے ہیں اور انگشت بدندہ ہو جاتے ہیں اور باہم تشدد کی باتیں کرنے لگتے ہیں. بارہا مجھے بھی حضور اشرف ملت کی بارگاہ میں مجلس کی شرفیابی ہوئی ہے. میں نے بھی آپ کے مزاج کو دیکھا ہے اور آپ کا انداز دیکھا ہے. آپ کے ذہن میں بڑی وسعت ہے, بڑی گنجائش ہے, بڑی کشادگی ہے اور بڑی محبت سے آپ نوازتے ہیں. ہر آنے والا خواہ وہ پرانا ہو نیا ہو, وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ اس کی حضور اشرف ملت سے پرانی ملاقات ہے. اور سرکار غریب نواز کے اس قول کے آئینے میں اگر ہم دیکھیں تو سچائی نظر آتی ہے کہ نفرت کسی سے نہیں, محبت سب کے لیے. اور اب ہم دعا کرتے ہیں. یہاں میں مولانا مقبول احمد صالح مصباحی صاحب سے کہوں گا کہ آپ دعا فرمائیں, اور جو جن محبین نے دعا کے لیے, سلام کے لیے عرض کیا ہے, آپ بنا نام لیے ان تمام کے لیے بھی دعا فرمائیں. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدجال. بغیر دعوے والا افتادہ کشتی ضعیفان شکست نارا تو کشتی بہ کے خواجہ شمال ہر جماعت چشتی اے اشرف زمانہ زمانے مدد مادر ہر مستراز کلید کرم کشا اشرف نہنگ دریا دریا بسنا دار دشمن سے پوری بازو پر پشتا یا اللہ. آج جن لوگوں نے بھی ہم سے, ہمارے دوست میں سے, احباب میں سے دعا کی درخواست کی ہے, جو لوگ بیمار ہیں, مولا کریم حضرت مخدوم پاک سے وسیلے ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اپنی حاجتیں پیش کی مخدوم پاک کی بارگاہ میں, اور خاص طور پر جنہوں نے اپنے سلام عرض کی, اپنی حاجتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں, یا مخدوم پاک ان تمام حاجتوں کو ہم اپنے محبین کی ضرورتوں کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اپنے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں, ان کے وسیلے سے سرکار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے اور ان کی تمام ضرورتوں کی تکمیل فرمائے. سرکار آپ کی بارگاہ سے ہزاروں لاکھوں لوگ ہر سال شفا یاب ہوتے ہیں مختلف بیماریوں سے, بلاؤں سے. سرکار جتنے لوگ آپ کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں, جو کہیں بھی ہوٹلوں میں, کمروں میں, حجروں میں, کسی کے گھروں میں قیام فرمائے اور سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہاں پر آئے ہیں, مولا کریم ان سب پہ فضل فرما, کرم فرما, رحم فرما. سرکار مخدوم آپ کے فیضان کو ان کے اوپر جاری ثابت فرما. مولا جو بچے بیمار ان کو صحت و تندرستی عطا فرما. مولا جن جو آصف و بلیات میں گرفتار ان کو آصف و بلیات سے نجات عطا فرما. سرکار جتنا ہزاروں لاکھوں جنہ اور عالم باطن کی مخلوقات آپ کی غلام ہیں. سرکار آپ اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جو آصف زدہ ہیں, جو بیمار ہیں, اور ان کو کون سی بیماریاں, کون سی تکلیفیں لائق ہیں. سرکار ایک نگاہ کرم آپ ان کے اوپر ڈال دیجیے تاکہ سب کا بھلا ہو جائے. آمین. سرکار حضور اشرف ملت جو پیغام لے کر کے چلیں, جو تحریک لے کر کے چل رہے ہیں, آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ, اس کے اندر سرکار نگاہ کرم فرمائے, اس میں برکت عطا فرمائے, اس میں استقامت عطا فرمائے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی آپ اپنے فیضان کرم سے حضرت اشرف ملت کے قدموں کے اندر استقامت عطا فرمائے. اور جو ناظرین سن رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں ہمارے اس پروگرام کو, اور وہاں بیٹھے بیٹھے وہ لوگ دعا کی درخواستیں کریں, ان کے دلوں کے اندر حاجتیں تمنا ہیں. سرکار آپ دلوں, سب کے دلوں کو جاننے, سب کی حاجتوں کو جاننے والے ہیں. یہ اولیاء اللہ کی بارگاہ ہے. آپ کے تو غلام 500 اولیاء اللہ آپ کی حیات کے اندر آپ کے ساتھ مل کر کے اس نیر شریف کو کھودنے میں شریک تھے. سرکار حضرت خضر علیہ السلام آپ کی قیامت کی خبر, حضرت مخدوم جہانی آپ کے مخدوم جہانی اگست کو, اور آپ کے شیخ حضرت علاؤل حق پنڈوی کو ایک ایک دن میں 70 مرتبہ دیا کرتے. سرکار آپ کے جو مقام و مرتبہ ہے کہ 70 مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام آپ کی قیامت کی خبر دیتے ہیں. تو سرکار حضرت خضر پاک کے صدقے میں ان کی آمد کی برکتوں سے جو لوگ بھی اپنی حاجتیں ضرورتیں پیش کی ہیں آج آپ کی بارگاہ میں ہمارے ذریعے, اپنے غلاموں کے ذریعے, علامہ عرفان علامہ شریف کے ذریعے, سرکار سب کی حاجتوں کو پوری فرمائے, سب کے کاروبار میں ترقی ہو. سرکار یہ کورونا کا مرض, ظالم مرض, قاتل مرض جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہو, یا اللہ
اس مرض کے پیچھے جو ظالم طاقتیں ہیں سرکار مخدوم پاک صدقے مولا تعالیٰ ان ظالم طاقتوں کو نامراد فرما، ان ظالم طاقتوں کو خائب و خاسر فرما، ان کے چہروں کو کالا فرما، اور یہ مرض کی جو افواہ جو بلا دنیا کے اوپر جو ہے فرضی طریقے سے مسلط کی گئی ہے مولا اس بلا کو دور و نفور فرما۔ یا اللہ جو لوگ اس مرض کے اندر مبتلا بھی ہیں ہسپتالوں میں زیر علاج ہے مولا سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان خاص طور پر غلامان حسینی، غلامان حسنی اور اشرفی غلام آپ کے خانہ زاد غلام کاروباری لحاظ سے پریشان ہے پوری دنیا میں جہاں کہیں ہوں سرکار سب پہ نظر کرم فرما دیجیے، سب کو کاروبار میں ترقی ہو، سب کے کاروبار میں بڑھوتری ہو، جس کے کاروبار میں رکاوٹ ہو مولا جو لوگ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے بھی کاروبار کے اندر رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ سرکار جو ہے قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ سرکار آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دے کہ آپ کے نہ جانے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کے تمام غلاموں کو بے حساب روزی عطا فرمائے۔ قرآن کا فرمان اللہ تعالیٰ وہاں سے بندے کو روزی دیتا جہاں سے گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے تمام ناظرین و قارئین سامعین کو سرکار دعا فرمائے اللہ کی بارگاہ میں سب کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے جہاں سے بندہ جو ہے خیال اور گمان بھی نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی دعا قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق نور محمد علیہ وسلم برحمتہ۔ موبائل جو ہے بند کر